آج میرہادی کینیڈا سے واپس آیا تھا۔ پورے 5 سال کے بعد وہ واپس آیا تھا۔ اس کی ماں بہت بیمار تھی، اس لیے میرہادی کے باپ نے منتیں کر کے اسے پاکستان بلایا تھا۔ وہ اپنی ماں کی وجہ سے بہت پریشان تھا، جو پچھلے 1 ہفتے سے بیمار تھی۔ ایئرپورٹ پر اسے بابا سائیں لینے گئے تھے۔ جب اس نے حویلی میں قدم رکھا تو ایک دم اسے سب یاد آیا تھا، کس طرح دادا سائیں نے اسے مجبور کیا تھا۔ جیسے ہی اماں سائیں کے کمرے میں گیا تو وہ میرب کو دیکھ کر ایک پل کے لیے ٹھٹکا تھا، جو اس کی ماں کے سرہانے بیٹھی تھی اور بے تحاشا رو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر بے اختیار اس کے جذبات ابھرنے لگے، لیکن میرب کو تو جیسے کسی بات کی پرواہ ہی نہ تھی۔ وہ تو بس اماں سائیں کا ہاتھ پکڑے روئے جا رہی تھی۔ تائی اماں، آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تایا ابور، آپ ہی تو میرا واحد سہارا ہیں۔ میرہادی کی نظریں میرب سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ جب وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا تو وہ بہت معصوم اور چھوٹی سی تھی، لیکن آج جب وہ واپس آیا تو میرب پورے 17 سال کی ہو گئی تھی اور بھرپور جوانی میں اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ میرہادی کا دل کر رہا تھا کہ حویلی کے وسیع اور اس دیوان خانے میں نیم تاریکی کا عالم تھا۔ مغرب کی اذان ہو چکی تھی اور حویلی کے سبھی افراد نماز سے فارغ ہو کر اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو چکے تھے، مگر دیوان خانے میں ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، جہاں ایک بھاری بھرکم شخصیت اپنی مخصوص کرسی پر براجمان تھی۔ یہ تھے دادا سائیں، جن کی سفید داڑھی ان کے روبدار چہرے کا وقار بڑھا رہی تھی۔ ان کے سامنے کھڑا نوجوان میرہادی اضطراب میں مبتلا تھا۔ بیٹھ جاؤ ہادی، دادا سائیں کی بھاری آواز گونجی۔ میرہادی نے بے چینی سے اپنے ہاتھوں کو مروڑا اور خاموشی سے سامنے رکھے قالین پر بیٹھ گیا۔ اس کا دل کسی انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دادا سائیں جب بھی یوں خاص طور پر بلاتے ہیں تو کوئی بڑا فیصلہ ہونے والا ہوتا ہے۔ دادا سائیں نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑا، گہری نظروں سے اسے دیکھا، پھر سخت لہجے میں بولے، کل صبح تمہارا اور میرب کا نکاح ہوگا۔ میرہادی کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کی سماعتوں میں گرم سیسا انڈیل دیا ہو۔ اس کے چہرے پر حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات ابھرے۔ لیکن دادا سائیں، میرب ابھی بچی ہے، اس کی عمر تو صرف 13 سال ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہادی نے ہمت کی اور اس بات سے اعتراض کیا۔ دادا سائیں نے اپنی چھڑی زمین پر زور سے ماری، ان کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ میرہادی، تم میرے پوتے ہو اور یہ حویلی کا اصول ہے کہ ہمارے گھر کی بیٹیاں باہر نہیں جاتی۔ اگر میرب کی شادی کسی اور خاندان میں کر دی گئی تو ہمیں اس جائیداد سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ یہ زمینیں، یہ حویلی، یہ رتبہ، سب کچھ داؤ پر لگ سکتا ہے۔ لیکن دادا سائیں، کیسے ممکن ہے یہ؟ میں یہ نکاح نہیں کروں گا۔ دادا سائیں غصے سے بولے، تم سے کس نے پوچھا ہے؟ میں تمہیں بتا رہا ہوں، کل تمہارا نکاح ہے۔ ہادی نے بے بسی سے دادا سائیں کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کے سامنے کوئی بات کرنا بیکار تھا، مگر پھر بھی وہ بولا، دادا سائیں، نکاح کا فیصلہ کم از کم میرب سے تو پوچھ لیا جائے، اسے اس بات پر اعتراض ہو سکتا ہے۔ دادا سائیں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ حویلی میں بیٹیوں کی رائے نہیں لی جاتی، فیصلہ کیا جاتا ہے، اور جہاں تک تمہاری مرضی کا سوال ہے تو تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں بدلے گا۔ کل صبح مولوی صاحب آئیں گے اور نکاح ہوگا وہاں پر۔ میرہادی کے بابا سائیں بھی موجود تھے۔ میرہادی نے گہری سانس لی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ جانتا تھا اگر اس نے مزید بحث کی تو دادا سائیں کا غصہ مزید بڑھ سکتا ہے اور اس کے لیے ان کا حکم ٹالنا ممکن نہیں تھا۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ میرہادی کی آنکھوں میں بے بسی تھی، جبکہ دادا سائیں کی آنکھوں میں ضد اور اختیار کی چمک تھی۔ حویلی کے وسیع آنگن میں صبح روشنی کی دھیرے دھیرے پھیل رہی تھی، ہر طرف گہما گہمی تھی۔ نوکر چاکر دوڑ دھوپ میں مصروف تھے اور عورتیں مخصوص شادی بیاہ کے کاموں میں جٹی ہوئی تھیں، لیکن یہ خوشیوں کی نہیں بلکہ ایک خاموشی اور مجبوری کی تقریب تھی۔ آج میرہادی اور میرب کا نکاح ہونے جا رہا تھا۔ دیوان خانے میں مردوں کی محفل سجی تھی، جہاں دادا سائیں اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے برابر میں چند بزرگ اور خاندان کے 5 لوگ موجود تھے۔ مولوی صاحب آیات نکاح کی تلاوت کر رہے تھے اور میرہادی خاموشی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔
कबूल है, मौलवी साहब की आवाज कानों में गूंजी। ये वो सवाल था जिसका जवाब उसे देना था, मगर वो जानता था कि उसके पास कोई इख्तियार नहीं था। उसका दिल चीख चीख कर इनकार कर रहा था, लेकिन सामने बैठे दादा साईं की सख्त नजरें उस पर गड़ी हुई थी। उसने आंखें बंद कर ली, मुट्ठी सख्ती से बंद की और कहा, कबूल है। अल्फाज मुंह से निकलते ही उसे लगा जैसे उसकी सांसें रुक गई हैं। इसी दौरान जनाना खाने में मीरब सादा से लिबास में आंखों में खौफ लिए बैठी थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन वो जानती थी कि भागने के बाद उसके लिए कोई पनाह नहीं थी। इसलिए उसने सुना कि मौलवी साहब ने उसका नाम लेकर 3 बार पूछा और उसकी जबान कप आई, मगर उसने भी कबूलियत के अल्फाज दोहरा दिए और यूं मीर हादी और मीरब का निकाह हो गया। निकाह के बाद हवेली में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। सब जानते थे कि यह निकाह मजबूरी में हुआ है। मीर हादी ने निकाह के बाद नीरब से एक बार भी बात नहीं की थी, बल्कि वो दीवान खाने में बैठा सिगरेट के कस लगा रहा था। दादा साईं ने उसे बुलाया। हादी, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मीरब को इज्जत दो। हादी तल्खी से हंसा। इज्जत दादा साईं, आपने तो हमारी जिंदगियों का फैसला सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए कर दिया और अब आप इज्जत की बात कर रहे हैं। दादा साईं ने सख्त नजरों से उसे घूरा। यह खानदान की इज्जत का मामला था, तुम उसे नहीं समझोगे। हादी ने नफरत भरी नजरों से अपने दादा को देखा और वो दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि वो इस जंजीर को तोड़ देगा। ये बात नहीं थी कि मीर हादी को कोई लड़की पसंद थी और ना ही वो मीरब को नापसंद करता था, बल्कि मीरब से तो उसकी इतनी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन वो मीर हादी से 10 साल छोटी थी। मीर हादी ने कभी भी मीरब के साथ और उसके बारे में इस तरह नहीं सोचा था। रात के साए हवेली में बढ़ते जा रहे थे और मीर हादी अपने कमरे में बैठा बेचैनी से सोच रहा था। वो यहाँ नहीं रह सकता था, वो इस निकाह को कबूल नहीं कर सकता था। अचानक उसने फोन उठाया और अपने पुराने दोस्त ताहिर, जो इंग्लैंड में रहते थे, उसे कॉल की। ताहिर, मुझे इंग्लैंड जाना है, जल्द अज जल्द। ताहिर हैरान हुआ। हादी, सब खैरियत तो है? तुम मुझे परेशान लग रहे हो। हादी ने तल्खी से कहा, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, मैं बस यहाँ से दूर जाना चाहता हूँ। ताहिर समझ गया था कि जरूर हादी को कोई न कोई मसला है। उसने चंद दिनों में वीजे और दीगर मामलात का इंतजाम करने का वादा कर लिया। उधर मीरब अपने कमरे में बैठी थी। वो जानती थी कि मीर हादी उसे कबूल नहीं करेगा, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो उसे छोड़कर चला भी जाएगा। वो बहुत परेशान थी। 2 दिन बाद सुबह सवेरे मीर हादी अपना बैग लिए हवेली से निकलने लगा। दादा साईं ने उसे रोका। कहाँ जा रहे हो? हादी ने सीधी नजरों से उन्हें देखा। जहाँ मेरी मर्जी होगी। दादा साईं ने गुस्से से छड़ी जमीन पर मारी। यह हवेली तुम्हारा घर है और मीरब तुम्हारी बीवी है। नहीं दादा साईं, हादी हंसा। ये सब जबरदस्ती थी। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जो आपकी मर्जी के मुताबिक चलूं। ये कहकर उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। जब हादी गाड़ी में बैठ रहा था, मीरब दौड़ती हुई बाहर आई। उसकी आंखों में बेबसी थी। हादी, मत जाओ, देखो तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हो। अब मेरी अम्मी अबू भी मुझे छोड़कर चले गए हैं। तुम भी चले जाओगे तो मैं अकेली हो जाऊंगी। वो रो रही थी। हादी ने एक लम्हे के लिए उसे देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई नरमी नहीं थी। मुझे मत रोको, मीरब। मीरब ने आंसू भरी आंखों से कहा, अगर तुम चले गए तो मैं कभी भी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। हादी ने गाड़ी स्टार्ट की और एक नज़र पीछे हवेली पर डाली। यहाँ उसकी बीवी खड़ी थी, मगर वो इस निकाह को एक जंजीर समझता था और उसे तोड़ना चाहता था। गाड़ी धूल उड़ाती हुई हवेली के दरवाजे से निकल गई और पीछे सिर्फ खामोशी और आंसू रह गए। कितनी देर मीरब अपने कमरे में आकर रोती रही। निकाह से पहले उसे ताई अम्मा ने कहा था, मीरब, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारा निकाह हो जाएगा और मीर हादी तुम्हारा सब कुछ है। पहले तो उसकी माँ बाप उसे छोड़कर चले गए थे, अब हादी भी उसे छोड़कर जा रहा था। ताई अम्मी उसे दिलासा देती रही, मीरब बच्ची चुप कर जाओ, मीर हादी जरूर वापस आएगा। मीरब इस वजह से नहीं रो रही थी कि मीर हादी निकाह करके उसे छोड़कर गया था,
वो इसलिए रो रही थी कि मीर हादी के साथ उसकी बहुत ज्यादा दोस्ती थी। वो अपने दिल की हर बात मीर हादी से किया करती थी। वो इसलिए रो रही थी कि उसने अपना एक अच्छा दोस्त खो दिया था। हवेली के सहन में लगे बरगद के दरख्त की पुरानी शाखें वक्त के बोझ से झुक चुकी थी, जैसे वो भी हादसात के गवाह हों जिन्होंने इस हवेली में रहने वालों की जिंदगियों को बदल के रख दिया था। दादा साईं की हुक्मरानी में ये हवेली मजबूत किले की तरह खड़ी थी, मगर इसके मकीनों की किस्मत किसी को मालूम नहीं थी। दादा साईं के दो बेटे थे, बड़ा बेटा मीर जलाल और छोटा बेटा मीर फहद। मीर जलाल एक सख्त मिजाज आदमी था, जिसे अपने उसूलों और हवेली की रवैयात पर मुकम्मल यकीन था। उसका बेटा मीर हादी था, जो बचपन से ही जिद्दी और अपनी मर्जी का मालिक था। वो हवेली के असूलों को कभी कभी बहुत समझता था। दूसरी तरफ मीर फहद तबीयत का नरम था। उसकी दुनिया उसकी बीवी और बेटी मीरब के गिर्द घूमती थी। मीरब उसकी आंखों का तारा थी और वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। मीरब की उम्र सिर्फ 11 साल थी जब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सान्या पेश आया। उस दिन मिर्फाद और उसकी बीवी शहर जा रहे थे। वो अपनी बेटी के लिए नए कपड़े और खिलौने खरीदना चाहते थे। मीरा बहुत खुश थी कि उसके माँ बाप उसे शहर लेकर जा रहे थे, मगर दादा साईं ने सख्ती से मना कर दिया था। लड़कियों का यूं बाजारों में जाना मुनासिब नहीं होता। उन्होंने फैसला सुनाया। मीरब ने मुंह बनाया था, मगर वो अपने दादा से ज्यादा बहस नहीं कर सकती थी। मीर फहद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा परेशान मत हो, हम तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत तोहफे लेकर आएंगे। मीरब ने सर हिला दिया, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि ये आखिरी बार होगा जब वो अपने माँ बाप को देख रही है। शाम होने को आई, मगर मीर फहद और उसकी बीवी वापस नहीं आए। हवेली में सब परेशान हो गए थे। फोन किया गया, मगर कोई जवाब नहीं मिला। फिर अचानक एक पुलिस अफसर ने हवेली में कदम रखा। हमें अफसोस है कि मीर फहद और इनकी अहलियत का एक्सीडेंट हो गया है। वो मौका पर ही जान बहक हो गए हैं। दादा साईं खामोश हो गए थे। उनका चेहरा पत्थर की मानित सख्त हो गया। मीर हादी को लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले से निकल गई हो। मगर सबसे ज्यादा सदमा मीरब को पहुंचा था। वो अपनी माँ की गोद में सर रख कर सोने की आदी थी, अपने बाप के साथ खेलने की आदी थी, और आज वो दोनों नहीं थे। हवेली में शोक का आलम था। मीरब कुछ दिनों तक किसी से बात नहीं करती थी और रात को अपनी माँ की चादर को लपेट कर सोती, मगर नींद नहीं आती थी। बाबा आएंगे? उसने एक दिन मीर हादी से पूछा। मीर हादी खामोश रहा। मेरी माँ भी वापस आ जाएगी ना? मीर हादी भी परेशान हो जाता था। कुछ दिन बाद दादा साईं ने मीरब को अपने पास बुलाया। बेटा, तुम्हारा बाप अब नहीं रहा, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी है। मीरब ने खाली नजरों से उनकी तरफ देखा। और हवेली की रवायात यही कहती हैं कि तुम्हारा निकाह कर दिया जाए। ये कहते हुए दादा साईं वहां से चले गए। और अब जब मीरब मीर हादी के निकाह में थी, तो वो उसे छोड़कर चला गया था। मीर हादी के जाने के बाद मीरब बिल्कुल अकेली रह गई थी। उसका दिल खाली हो चुका था। वो छोटी सी उम्र में इतना कुछ खो चुकी थी, अपने माँ बाप, अपनी खुशियाँ, अपना दोस्त। मीर हादी भी हवेली के वसीअ और ईद कमरों में एक हवलनाक सन्नाटा था। दीवारों पर लटकते कदीम फानूस मध्यम रोशनी दे रहे थे, जैसे वो भी शोक में डूबे हुए हों। इस खामोशी में एक कमरे से हल्की हिचकियों की आवाज आ रही थी। मीरब अपने बिस्तर पर बैठी घुटनों में सर दिए रो रही थी। उसकी उम्र सिर्फ 11 साल थी, मगर उसने जिंदगी के सबसे बड़े सदमे झेल लिए थे। वो अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसके माँ बाप हमेशा के लिए जा चुके थे। अम्मी बाबा, वो सरगोशी में बोली, जैसे उम्मीद हुआ कोई जवाब देगा, मगर हवा में सिर्फ खामोशी थी। उसकी माँ की नरम आवाज, जो हमेशा उसके बालों में उंगलियां फेर कर कहती थी, मेरी गुड़िया रोना नहीं, वो आवाज अब सिर्फ यादों में रह गई थी। बाबा की वो मुस्कुराहट, जो हर बार उसे देखकर चेहरे पर आ जाती थी, वो सब लम्हे कहीं खो चुके थे। वो सोच रही थी कि शायद हादी से तसल्ली देगा, मगर वो भी चला गया। क्यों चले गए हादी? उसने खुद से सवाल किया। वो वाहिद शख्स था जो मीरब को हमेशा हंसाता था, उसे छेड़ता था, उसके साथ खेलता था, मगर अब वो भी
उसका साथ छोड़कर जा चुका था। अब मेरे पास कोई नहीं है, उसने खुद से कहा और दोबारा फूट फूट कर रोने लगी। कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खुला और ताई अम्मा अंदर आई। उनके चेहरे पर हमदर्दी थी। वो जानती थी कि उनकी छोटी सी बच्ची पर क्या कयामत टूटी है। मीरब बेटा, यूं रोते नहीं, उन्होंने आहिस्ता से कहा। मीरब ने सर उठाया, आंखें आंसू से सुर्ख हो चुकी थी। ताई अम्मा, अम्मी पापा क्यों चले गए? मैंने उनके बगैर जीना नहीं सीखा। ताई अम्मा ने आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया। बेटा, ये अल्लाह की मर्जी थी। हमें नहीं मालूम कि जिंदगी हमें कहाँ ले जाएगी, मगर एक बात याद रखो, तुम अकेली नहीं हो। मीर हादी, वो भी तो चले गए। ताई अम्मा ने एक आह भरी। हादी को वक्त चाहिए। बेटा, तुम इस हवेली की बेटी हो, बहू हो, और हम सब तुम्हारे साथ हैं। मीरब खामोश रही, मगर तायम्मा के अल्फाज ने उसके दिल में एक मामूली सा सुकून पैदा कर दिया था। और अब जबकि हादी वापस आ गया था, तो वो तायम्मी के पास बैठी रो रही थी। हादी आज 5 साल बाद आया था। उन 5 सालों में मीरब ने खुद को बहुत मजबूत कर लिया था। वो अब मीर हादी के सामने कम नहीं आती थी और ना ही उससे बात करती थी। वो तायम्मी के कमरे में बैठी होती और अगर हादी वहां आ जाता तो वो वहां से उठकर चली जाती थी। उसे मीर हादी से नफरत होने लगी थी। उस मुश्किल वक्त में मीर हादी उसे छोड़कर चला गया था। अगर ताई अम्मी उसे ना संभालती तो वो टूट चुकी थी। कुछ दिन बाद ताई अम्मी की तबीयत संभल गई थी और मीरब इस इंतजार में बैठी थी कि कब मीर हादी वापस इंग्लैंड जाए और वो सुकून का सांस ले। वो स्टडी रूम के पास से गुजर रही थी कि उसे मीर हादी और दादा साईं की आवाज आई। दादा साईं कोई बात कर रहे थे, जिस पर मीर हादी बहुत हंस रहा था। जी दादा साईं, आप बहुत ग्रेट हैं। वो बड़ी हैरान हो रही थी। आज इतने अरसे के बाद दादा साईं के साथ बड़ी दोस्ती हो गई है। और उस वक्त दादा साईं के फैसले पर हवेली छोड़कर चले गए थे। वो सर झुटकती हुई वहां से कमरे की तरफ चली गई थी। आजकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहे थे और वो भी चाहती थी कि अपनी फ्रेंड्स के साथ एडमिशन ले ले, और उसने लाजमी कल अपने फॉर्म जमा करवाने थे, नहीं तो एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। वो रात देर तक ताई अब्बू का इंतजार करती रही। वो जानती थी कि को एजुकेशन में दादा साईं कभी भी इजाजत नहीं देंगे, इसलिए उसे ताई अब्बू का सहारा चाहिए था। लेकिन वो भी इस रात बहुत देर से घर आए थे, तब उसने ताई अब्बू को डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। सुबह सब नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए थे। मीरब भी आ गई थी। ताई अब्बू, मैंने यूनिवर्सिटी जाना है। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम जरूर यूनिवर्सिटी जाओ। कब एडमिशन हो रहे हैं? उन्होंने मुस्कुराकर मीरब से पूछा। अभी वो बोलने ही वाली थी कि अगले ही पल उस पर एक और इंकशाफ हुआ, जब दादा साईं ने उसे कहा, नहीं, एडमिशन की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारी मीर हादी के साथ रुखसती होगी। मीरब के तो गोया पाँव के नीचे से जमीन निकल गई थी। वो कभी भी उस संगदिल इंसान से शादी नहीं करना चाहती थी। बहुत गुस्से से मीरब ने मीर हादी को देखा था, जबकि वो मुस्कुराता हुआ चमकती आंखों के साथ उसे देख रहा था। मीरब का दिल किया कि वो डाइनिंग टेबल पर पड़ा हुआ गिलास उठाए और उसके सर पर दे मारे। इतना अरसा वहां रहकर आया था, वहां किसी गोरी से शादी कर लेता ना। ये बात उसने दिल ही दिल में कही थी, लेकिन उसने बहुत ही मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल किया था। उसने ताई अब्बू की तरफ देखा। ताई अब्बू, वो मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। तभी ताई अब्बू कहने लगे, हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम जरूर पढ़ो, लेकिन ये सब रुश्ती के बाद भी हो सकता है। वैसे भी मीर हादी अब वापस नहीं जाएगा। ये सब कुछ तुम दोनों का ही तो है, हमारा तुम दोनों के अलावा कौन है? और मीर हादी ही ने ये सब कुछ संभालना है। दादा साईं अब जमीनों पर जाते नहीं, और अब मैं जमीनों को हिसाब किताब संभाल कर थक गया हूँ। अब मीर हादी वापस नहीं जाएगा। मीरब की आंखों में आंसू आ गए थे। वो दादा साईं के सामने कुछ भी नहीं कह सकी थी और कमरे में आकर रोना शुरू कर दिया। बाहर बहुत मुश्किल से उसने अपने आंसू पर जब्त किया था। कमरे में आकर आंसू रवानी से बहने लगे। तभी ताई कमरे में आ गई। ताई को मीरब से बहुत प्यार था। एक तो उनकी अपनी बेटी नहीं थी, दूसरा मीरब खुद उन्हें अपनी माँ की तरह समझती थी। मीरब, क्या हुआ? मेरी गुड़िया को ताई ने आते ही कह दिया। उसे अपने सीने से लगा लिया। ताई अम्मी, मैंने शादी नहीं करनी। आप बेशक मीर हादी की शादी किसी और से कर दें। मीरब ने रोते हुए कहा।
ये क्या कह रही हो मीरा बेटा? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे दादा जान का फैसला है, जानती हो, ताई ने उसे घूरते हुए कहा। अच्छा चलो अपना मूड ठीक करो। तभी मीरादी की आवाज आई, अम्मा साईं किधर हैं आप? मीरब एकदम घबरा गई। तभी मीरब की माँ वहां से गई तो मीरब ने सुकून का सांस लिया। वो तो परेशान हो गई थी। ये न हो कि मीरादी इधर ही आ जाए। हवेली की दरो दीवार आज एक बार फिर रोशनी में नहा रहे थे। बड़े दरवाजे पर रंग बिरंगे कमकमे लगे हुए थे जो अंधेरे में जगमगा रहे थे। अंदर हर तरफ हलचल मची हुई थी। नौकर चाकर मेहमानों की खातिर मदारत में लगे हुए थे और खानदान की औरतें शादी की तैयारियों में मसरूफ थी। आज मीरहादी और मीरब की शादी थी। मीरब सुर्ख जोड़े में बैठी आईने में अपना अक्स देख रही थी। वह दुल्हन बनी बहुत खूबसूरत लग रही थी, मगर उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद वो बहुत मासूम और प्यारी लग रही थी। उसकी आंखों में आज भी उदासी थी और वो एक गहरी सोच में गुम थी। बीबी जी, आप कुछ नहीं लग रही, कनीज ने आहिस्ता से कहा। मीरब ने कोई जवाब नहीं दिया। इतनी बड़ी खुशी का दिन है और आप यूं उदास बैठी हैं। नीरब ने एक लंबी सांस ली। ये खुशी का दिन होता अगर ये सब मेरी मर्जी से होता। नीरब जानती थी ये शादी उसकी अपनी मर्जी से नहीं हो रही थी। ये एक फैसला जो दादा साईं ने वर्षों पहले कर दिया था। ये शादी होगी चाहे कोई खुश हो या ना हो। दादा साईं का हुक्म था और उस हुक्म के आगे किसी की कोई हैसियत न थी। बेटा कुछ फैसले वक्त पर छोड़ देने चाहिए। शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाए। ताई अम्मा ने उसे समझाने की कोशिश की थी। रुखसती का वक्त आया तो मीरब ने नजरें नीची रखी। आंखों में आंसू उमड़ रहे थे, मगर उसने अपनी आवाज को मजबूत रखा। वैसे भी उसे बस रूम चेंज करना था। मीरब की आंखों में आंसू नहीं थे। शायद वो इतनी टूट चुकी थी कि अब रोने की हिम्मत भी नहीं रही थी। खुश रहो बेटी, ताई अम्मा ने उसे गले लगाया। दादा साईं के चेहरे पर सख्ती थी, मगर उनकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुके हों। नीरब को मीर आदि के कमरे में बिठा दिया गया। हर तरफ गुलाब की खुशबू फैली हुई थी। बेड पर सूख फूलों की पत्तियां बिखरी हुई थी, मगर मीरब को इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो मीर हादी के सामने खुद को मजबूत रखना चाहती थी। कब से उसने आंसुओं को रोक रखा था। उसका दिल चाह रहा था कि इन फूलों को उठाकर फेंक दे, लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि मीर हादी अगर कमरे में आए तो वो किसी भी बात की शिकायत दादा साईं को लगाए। वो अभी बेड से उठी ही थी कि दरवाजा खुला। मीर हादी मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ। अरे मीरब, खड़ी क्यों हो? बैठो। मीरब ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने वार्डरोब से अपने कपड़े निकाले और वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जा रही थी कि मीर हादी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे ठीक से देखने तो दो कि मेरी बीवी कैसी लग रही है। हादी ने उसकी तरफ गौर से देखा और उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे किया। मीरब ने अपने हाथ की तरफ देखा। मेरा हाथ छोड़ें, मीरब ने गुस्से से कहा, लेकिन हादी मुसलसल मुस्कुराए जा रहा था। तभी मुस्कुराते हुए उसने मीरब का हाथ छोड़ दिया। मीरब फ्रेश होकर बाहर निकली तो वो और भी ज्यादा खूबसूरत और निखरी हुई लग रही थी। मीर हादी अभी बेड पर ही लेटा हुआ था। अभी वो सोच ही रहा था कि मीरब इसके पास आएगी, लेकिन मीरब ने तकिया उठाया और जाकर सोफे पर लेट गई। हादी एकदम उठा। वो तो बेड पर उसका मुंतज़िर था। अब तुम्हें क्या हुआ है? क्या मसला है? मीर हादी ने कहा। मुझे कोई मसला नहीं, मीरब ने जवाब दिया। ये क्या है? तुम सोफे पर क्यों लेट गई हो? चलो और आकर बेड पर लेटो। वो कुछ न बोली। जबकि हादी खुद उसके पास गया तो उसका हाथ पकड़कर उसे उठाने लगा। तभी उसने मीर हादी का हाथ झटक दिया और गुस्से से कहा, मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना मीर हादी। एकदम से धचका लगा था। वो जो इतने दिनों से देखकर उसके लिए तड़प रहा था। वो चाहता तो इंग्लैंड से आते ही उसे अपने कमरे में ला सकता था, क्योंकि वो उसके निकाह में थी, लेकिन वो चुप रहा। उसने तो दादा साईं को मजबूर किया था। दादा साईं मीरब की और मेरी शादी कर रहे हैं। हवेली में कोई फंक्शन होना चाहिए। तभी दादा साईं भी हैरान हो गए थे। मीर हादी के बाबा साईं पहले तो नहीं मान रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे मीरब यूनिवर्सिटी में पढ़े, लेकिन मीर हादी की जिद पर ही उन्होंने रुखसती की थी। वो चुपचाप आकर लेट गया, जबकि मीरब वहीं सोफे पर कंबल लपेट कर सो गई। सारी रात मीर हादी को नींद न आई।
वो करवटें बदलता रहा। उसका बस नहीं चल रहा था कि अभी मीरब को उठाकर अपने पास ले आए, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहता था। वो चाहता तो जबरदस्ती भी अपना हक वसूल कर सकता था, लेकिन उसने मीरब को कुछ नहीं कहा। कई सवाल उसके जहन में आ रहे थे। मीरादी कुछ दिन बहुत परेशान रहा। उसने किसी को भी मीरब के रवैये के बारे में नहीं बताया था। जबकि ताई अम्मी ने जब मीरब से पूछा, मीरादी तुम्हारे साथ ठीक है ना, तब मीरब ने कह दिया, जी ताई माँ, सब ठीक है। वो कोशिश करती थी कि ज्यादातर वो ताइमी के साथ काम में लगी रहे। जब भी मीर हारी घर आने का टाइम होता, वो किसी न किसी बहाने से बाहर निकल जाती। अब तो वो इस कॉलेज में एडमिशन भी नहीं ले सकती थी जहाँ उसकी सारी सहेलियां पढ़ती थीं, क्योंकि वहाँ एडमिशन बंद हो गए थे। एक दो दफा ताया बोले उसे कहा भी, मीरब एडमिशन के बारे में पता करवाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ख्वाहिश पूरी करो। कल को मैंने अपने भाई को मूवी दिखाना है। आज जब मीर हादी जमीनों से फारिग होकर घर वापस आया तो वो उसे कहीं भी नजर नहीं आई। पर आते ही मीर हादी की नजरें मीरब को तलाश करने लगी। हर जगह वो उसे देख चुका था, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आई थी। उसे ख्याल आया कहीं वो अपनी अम्मी के कमरे में ना हो। जैसे ही वो चची के कमरे में गया, मीरब वहां बैठी अम्मी और अबू की तस्वीर रखे रो रही थी। एकदम हादी के दिल को कुछ होने लगा। वो उसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो पहले ही ऐसा था। जब वो छोटी थी तो तब भी हादी उसे रोने नहीं देता था, लेकिन अब वो रो रो कर अपने माँ बाप से यही कह रही थी, अम्मी अब आप बताएं मैं कैसे मीरा हादी को अपना शौहर मानूं। मैंने तो उसे अच्छा दोस्त भी खो दिया है। इतने साल उसने मेरे साथ बात भी नहीं की। नफरत से वो मुझे छोड़कर यहाँ से चला गया, और इन 5 सालों में मेरे अंदर इतनी नफरत भर गई है जितनी इस वक्त मीरा हादी के अंदर भी थी। मीरा हादी तो ये सुनकर हैरान रह गया। वो यूं ही वापस पलट आया। उसका दिल कर रहा था कि अभी जाए और मीरब की आंखों से आंसू साफ करके उसे अपने सीने से लगा ले। उस वक्त तो हालात ऐसे थे। वो तो उसे शादी नहीं करना चाहता था कि मीरब बहुत छोटी थी। वो कमरे में आ गया। थोड़ी ही देर बाद मीरब भी कमरे में आ गई। अलमारी खोलकर मीरा हादी के कपड़े निकालने लगी। हादी ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखें रोने की वजह से सुर्ख हो गई थी। क्या करने लगी हो? मीरा हादी ने कहा। आपके कपड़े इस्त्री करने लगी हूँ, मीरब ने जवाब दिया। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। काम वाली किसके लिए है? नहीं, मैं कर लूंगी। ये कहते हुए वो कपड़े उठाकर बाहर चली गई। शायद वो ज्यादा से ज्यादा मीर हादी की नजरों से दूर रहना चाहती थी। हादी सारे दिन का थका हुआ था। आज जमीनों पर भी बहुत ज्यादा काम था। काम करने के लिए तो मुलाजिम थे, लेकिन उसने सारे काम खुद देखने होते थे और अपनी निगरानी में काम करवाने होते। इसलिए वो लेटते ही सो गया। उसे नहीं पता कब मीरा बाई और सोफे पर सो गई। रात के 1 बजे अचानक गरज चमक शुरू हो गई। मीरब जिस सोफे पर सो रही थी वो खिड़की के बिल्कुल पास ही पड़ा था। एकदम से बिजली चमकी और लाइट चली गई। मीरब चीख मारते हुए भागी और मीर हादी के सीने से लग गई, और मीर हादी ने जैसे ही इसके इंतजार में बैठा था फौरन उसे अपने साथ लगा लिया। वो बहुत बुरी तरह कांप रही थी। मीर हादी उसकी कपकपाहट महसूस कर रहा था। मीर हादी को कितना ही सुकून मिला था। मीरब एकदम बोली, मुझे ताई अम्मी के पास छोड़ आए। लाइट आ गई थी। शायद मुलाजिम ने जनरेटर ऑन कर दिया था। मीरब एक झटके से पीछे हटी थी। बाहर बारिश तेज हो रही थी, लेकिन लाइट आ जाने से मीरब को खौफ कम हो गया था। मीर हादी उठा और सोफे से तकिया उठाकर बेड पर रखा। तुम यहाँ आराम से सो जाओ, डर लगे तो मैं पास हूँ। मीरब ने जब माथे पर बल डाले उसे देखा तो वो हंस पड़ा। कमन यार, कुछ भी नहीं कहूँगा। वो चुप करके एक तरफ सो गई, लेकिन वो मीरब का एतमाद हासिल करना चाहता था। उसने खुद पर कंट्रोल किया और दूसरी तरफ मुँह करके सो गया। हवेली में शादी के कई महीने हो चुके थे, मगर मीरब और मीर हादी के दरमियान वही फासला अभी मौजूद था। मीर हादी ने कई बार कोशिश की थी कि वो मीरब के दिल में अपनी जगह बना सके, मगर मीरब उसे हमेशा दूर रखती। मीर हादी के दिल में मीरब के लिए तड़प बढ़ती जा रही थी। और मीरब की हर पसंद और नापसंद का ख्याल रखने लगा था। कभी वो उसके लिए फूल ले आता, कभी चॉकलेट रख देता, मगर मीरब हमेशा उसके जज्बे को नजरअंदाज कर देती। ये सब करने की जरूरत नहीं है, वो अक्सर कह देती, और मीर आदि खामोशी से मुस्कुराकर रह जाता। मीरब खुद भी नहीं जानती थी
कि क्यों उसके दिल में इतनी सख्ती थी। एक दिन मीरादी जमीनों के दौरे से वापस आ रहा था कि अचानक उसकी जीप एक पत्थर से टकरा गई। ड्राइवर ने पूरी कोशिश की कि गाड़ी को संभाल सके, मगर वो एक तरफ झुक गई और मीरादी का बाजू दरवाजे से टकरा गया। सर, आप ठीक हैं? ड्राइवर घबरा गया। मीरादी ने तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए कहा, हाँ, बस बाजू में चोट लगी है। मगर जैसे ही वो हवेली पहुंचा तो नौकरों ने शोर मचा दिया, छोटे साईं जख्मी हो गए हैं। ये खबर जब मीरब तक पहुंची तो वो बेचैन हो गई। हादी जख्मी हो गया। वो बेख्तियार दौड़ती हुई हवेली के बड़े हाल में आई, जहां मीर हादी को लाया जा रहा था। उसका बाजू सूज चुका था और खून निकल रहा था। ये सब कैसे हुआ? मीरब ने पहली बार घबराहट से पूछा था। मीर हादी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। बस एक मामूली हादसा था। मगर मीरब के चेहरे पर खौफ नुमाया था। मामूली? आपके बाजू से खून निकल रहा है और आप कह रहे हैं कि मामूली? उसी दिन से मीरब के रवैये में तब्दीली आ गई। जब हकीम ने यह कहा कि मीर हादी को आराम करने की जरूरत है, तो मीरब ने खुद उसका हर काम संभाल लिया। वो दिन में कई बार उसके कमरे में आती, दवा देती, पट्टी बदलती। ये तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, मीर हादी ने आहिस्ता से कहा। ये मेरा फर्ज है, मीरब ने नजरें झुकाते हुए जवाब दिया। मीरब किचन में गई और मीर हादी के लिए सूप बनाया। जब वो सूप लेकर आई तो मीर हादी हैरान रह गया। तुमने खुद बनाया? जी, मीरब ने जवाब दिया। उसने चम्मच भरकर मीर हादी के करीब किया। मैं खुद पी लूंगा, मीर हादी ने कहा। नहीं, अभी आपके बाजू में दर्द है, मैं पिला देती हूँ। ये पहला मौका था जब मीरब ने अपनी मर्जी से मीर हादी का ख्याल रखा था। ये हादसा गोया दोनों के रिश्ते में एक नया मोड़ ले आया था। मीर हादी को उम्मीद होने लगी कि शायद मीरब भी एक दिन उसे दिल से कबूल कर लेगी, और मीरब को एहसास होने लगा था कि वो जितना भी कोशिश करे, मीर हादी की मोहब्बत से बच नहीं सकती। आहिस्ता आहिस्ता मीर हादी का जख्म भर गया, लेकिन मीरब जो उसका इतना ख्याल रख रही थी, लेकिन अभी तक उसने मीर हादी को उसका हक अदा नहीं करने दिया था। इन्हीं दिनों दादा साईं को अचानक सर में शदीद दर्द हुआ। मीर हादी उन्हें फौरन अस्पताल ले गया। वहाँ दादा साईं की कुछ रिपोर्ट्स ली गई और ये इंकशाफ हुआ कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है और वो आखिरी स्टेज पर है। वो एक हफ्ता अस्पताल रहे। मीरब ने उनका बहुत ख्याल रखा। वो सारा दिन वहीं रहती। फिर एक दिन वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। सब बहुत रो रहे थे। मीर जलाल और मीर हादी भी बहुत रोए। उन्हें दादा साईं का बहुत सहारा था। मीरब भी अपने दादा साईं के लिए रो रही थी। हवेली में हर तरफ शोक था। नौकर चाकर भी दादा साईं के चले जाने से बहुत उदास थे। काफी दिन तो मेहमानों का आना जाना लगा रहा। मीरब इन दिनों बहुत मसरूफ रहने लगी। वो हवेली में आती औरतों के पास बैठती, नौकरानी से कहकर उनके खाने का इंतजाम करवाती, फिर घर के बाकी काम भी अपनी निगरानी में देखती। दा, दादा सिंह को मरे 2 महीने हो गए थे। मीरब और मीर हादी के दरमियान अभी भी वही दूरी थी, लेकिन अब मीरब ने सोच लिया था कि वो मजीद इस रिश्ते को नहीं निभाएगी। वो कमरे में बैठी मीर हादी का इंतजार कर रही थी। मीर हादी जैसे ही कमरे में आया, अभी वो शूज उतार रहा था कि मीरब उसके सामने खड़ी हो गई। मीर हादी ने सर उठाकर देखा। मुझे आपसे बात करनी है, मीरब ने कहा। हाँ, बोलो। मैं तो कब से इस बात का इंतजार कर रहा हूँ कि तुम कुछ बोलो। आप मुझे तलाक दें। मीर हादी को लगा जैसे कोई बम उसके ऊपर आकर गिरा हो। क्या क्या कह रही हो? तुम होश में हो? वो गुस्से से चिल्लाया। जी, मैं होश में हूँ। मुझे आपसे तलाक चाहिए, मीरब बोली। मीर हादी का खून खोल रहा था। वो जो इतने महीनों से उसका लिहाज कर रहा था, उसे उसकी मर्जी के बगैर छूना भी नहीं चाहता था। कितनी शिद्दत थी उसके अंदर। वो खुद को कंट्रोल करता रहा, लेकिन आज वो आगे बढ़ा और जोर से मीरब का हाथ पकड़ा। मीरब ने चिल्लाना चाहा, लेकिन हादी ने इस बात का मौका ही नहीं दिया। उसे बेड पर गिरा दिया। तुम्हारी कुर्बत पाने को कब से तड़प रहा हूँ, और तुम हो के तलाक की बात करती हो। मीरब हैरान थी। ये झूठ है, आप इस शादी से खुश नहीं थे। साथ ही वो मीरब को अपने करीब करता जा रहा था। नहीं मीरब, मैं खुश हूँ। मैंने खुद दादा साईं से
रुखसती की बात की थी। वो बूढ़ मीरब में डूबता जा रहा था और मीरब जो इतने गुस्से में थी अब चुपचाप अपने शौहर को उसका हक दे रही थी। मीर हादी सारी रात मीरब पर अपनी शिद्दत की प्यास बुझाता रहा। सुबह दोनों जब मीर जलाल और उनकी बीवी ने उन दोनों को खुश देखा तो वो भी मुस्कुरा दिए। अब मीरब के दिल में कोई गिला नहीं था क्योंकि मीर हादी ने उसे अपनी मोहब्बत की शिद्दत दिखा दी थी।